Hello everyone. Today, the guest is Mr. Mukul Sharma. Mr. Mukul Sharma is an economist presently working as a joint director economics at Competition Commission of India. He has done masters in economics from Jamia Millia Islamia and economic honors from Delhi University. He was teaching at MIT University and Lloyd Institute in Noida. He started his career in financial markets. His interest areas are macroeconomics and history of economic thought, and he specializes in data analytics and visualization. He shares valuable content on economics on Instagram and YouTube and is being followed by a large community of students. He is here on this podcast in his personal capacity to share his views on a wide array of topics in economics and data science. Welcome to the podcast, sir. Thank you, Sahil. Lovely being here. And thank you for calling me to Eco Adda. My absolute pleasure to be discussing my favorite topics in economics and data science. Right. So, sir, before I start, I think आपने क्लास 11th 12th में इकोनॉमिक्स लिया, आपने बैचलर्स में इकोनॉमिक्स लिया, ये तो हमने अभी आपके इंट्रोडक्शन में देखा है, मास्टर्स इकोनॉमिक्स लिया. Why economics? Why not any other subject? Uh, okay, so personally for me, economics was something that I was naturally drawn to. I Mm-hmm. was a keen student of science, as of other subjects like history and geography, my favorite subjects. Apart from, in science, I really used to like physics, chemistry, uh, and even a bit of biology, except for my drawing. Uh, but yeah, I particularly remember, I think it was in the ninth standard that I was introduced to, you know, concepts of production, consumption, investment, functions of money and things like that. And that really drew me to uh, commerce in general and economics in specific. I was good in accountancy also. I had a keen interest in accountancy. At one point of time, I wanted to be a CA, and although somebody really showed me, very dark side of getting into preparing for CA, which really dissuaded me from doing that. And I thought, yeah, this economics sounds really, really good. So I went Mm-hmm. for economics. Economics was something that came very naturally to me. Uh, that was one subject I thought I did not need at all to remember or memorize. I understood it in a way that I could explain it to anybody, and I could write whatever I understood, and I really found it real life. That really drew me to economics. And I would say, you ask me why economics, I say, why not economics? Economics is a real life subject. It's a logical subject. It's a subject which teaches about human behavior. It teaches Mm-hmm. about choices humans make. So economics is a study of choices. That's what I always say. Uh, what choices do consumers make? What choices do producers make? What choices does government make? Uh, they try to make best choices for themselves. Government makes best choices for everybody else. Uh, so क्या circumstance होते हैं जिनमें ये लोग choices बनाते हैं? क्या ऐसी assumptions होती हैं? क्या इनके goals होते हैं जो ये maximize करते हैं? That's what economics is about. Economics is it gives you a very wide perspective of things. Yeah, it gives Mm-hmm. you, if you want to be an entrepreneur, let's say, good knowledge of microeconomics will help you how to run a business. Yeah, what are your Mm-hmm. costs? What are your fixed variable costs? Things like that. Then, how do you generate revenue? How do you look at what is a break-even point? What Mm-hmm. kind of markets you want to be an entrepreneur? जैसे हम शार्क टैंक देखते हैं, या तो पहला Mm-hmm. क्वेश्चन वो क्या पूछते हैं, भाई मार्केट साइज क्या है, कंपेटिटर कौन Right. है, Mm-hmm. Mm-hmm. वो क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही तो है। Right. मार्केट स्ट्रक्चर है जी आपका, ओलिगोपोली में काम कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में काम कर रहे
Right. Yeah, are you creating a monopoly? Uh, so this is economics. Yeah, uh, उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी देखनी है अगर वो सॉफ्टवेयर में है. If they are Mm-hmm. into business of software, the depreciation of currency is going to increase their revenue. Right. Yeah, because they are ultimately exporters. Mm-hmm. If they are Mm-hmm. into manufacturing and they are importing some raw material, depreciation of currency will hurt them. Mm-hmm. So that kind of economics they'll have to know. And if they have the Right. knowledge of economics, and then let's say they go on to do MBA, they'll be in a much better position because they understand the subject. Yeah, they understand the world that they are living in, the world that they are working in. Yeah, if Right. you want to invest in share markets, Mm-hmm. knowledge of economics will greatly help you. Mm-hmm. RBI Mm-hmm. has increased interest rate. What is the likely reaction of markets? What kind of sectors it's going to impact? Yeah, inflation has increased, WPI is increased. What kind of how will then RBI react to it? Then how will markets react to it? You will stand to benefit with your knowledge of economics. So economics is a very real life subject. It's not a subject that you can escape. चाहे आपने Mm-hmm. टेक्स्ट बुक में इकोनॉमिक्स पढ़ा हो ना पढ़ा हो, चाहे आपको ग्राफ समझ में आए हो ना आए, इकोनॉमिक्स आपको जरूर कहीं ना कहीं ढूंढ लेगी. बट तो सर, अगर हाँ. इकोनॉमिक्स हमें ढूंढ लेगी, बट मैंने ऐसा सुना है, और ऐसा है सर इंडिया में और हर एक जगह, इकोनॉमिक्स के साथ सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है मैथ्स का. सो या and people are afraid of maths. Many students are afraid of maths, but they like economics. They like elasticity of demand. They like demand, supply, production functions, so on and so forth. But when it comes to maths, they hated it. So how to deal with this complementary good? तो साहिल, उसमें एक जुड़ा सवाल ये है कि क्या इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है? Right. या एंड इस सवाल के भी दो पहलू हैं Mm-hmm. कि क्या इकोनॉमिक्स समझने के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है Mm-hmm. और क्या इकोनॉमिक्स डिग्री लेने के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है, और दोनों के जवाब बहुत डिफरेंट है. Mm-hmm. फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स, इज मैथमेटिक्स नेसेसरी? नो, एब्सोल्युटली नॉट. Economics Mm-hmm. is a logical subject. Whether you're talking micro, macro, international economics, जिस चीज किसी की चीज की आप बात करें इकोनॉमिक्स में, ट्रेड की बात करें, इट्स ऑल लॉजिक. In economics, you again you look at how choices are made in different situations by different sets of people, and you look at relationship between economic variables. What are economic variables? Anything that changes value. Yeah, whose value varies either with time or space. Mm-hmm. और उनके बीच में आप रिलेशनशिप स्टडी करते हो, और ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप है तो इसको रट लो. वो क्यों है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा. या Right. इन्फ्लेशन अगर बढ़ा है तो आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा. Right. क्यों बढ़ाना होगा? क्योंकि आपको डिमांड कम करनी है. डिमांड क्यों कम करनी है? क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई उतनी है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. सो दिस इज द लॉजिक अराउंड विच यू वीव द इकोनॉमिक थ्योरी. Yeah, Mm-hmm. and then you understand why something is there, in a certain way. Why will something react to something in a certain way? So you look at logic. Yeah, you look at how things work in real life. ये किसी साइंस लैब में नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन बढ़ा है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे. या दिस इज Mm-hmm. नॉट अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, दिस इज प्योर लॉजिक. या Mm-hmm. Mm-hmm. डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अगर हुई है तो व्हाई वुड इट बेनिफिट अ एक्सपोर्टर एंड नॉट बेनिफिट अ इम्पोर्टर? क्योंकि उसके पीछे Right. एक रीजन. Yeah. Mm-hmm. So the challenge is to understand that reason. Once you understand that reason, once you understand how economic variables are interrelated to each other, then you can understand economics. अब मैथमेटिक्स का रोल कहाँ आता है? मैथमेटिक्स का रोल आता है when I make models out of these theories. कि if Mm-hmm. price is inversely related to demand, तो उनकी जो
लीनियर इक्वेशन आएगी, उसमें नेगेटिव साइन होगा। राइट। या और उस लीनियर इक्वेशन में अगर मैं वो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा गिवन होगा प्राइस, मुझे निकालना होगा एक्स डिमांड। और वो हम्म। इक्वेशन की फॉर्म होगी, उससे मैं जो है प्राइस और गिवन प्राइस से डिमांड निकाल दूंगा। डिमांड राइट। निकाल लूंगा, उसमें एक लाइन भी बना दूंगा, वो ग्राफ बन जाएगा। या उसका डिफरेंट शेप भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वो पैराबोलिक भी हो सकता है। सो इन चीजों में मैथमेटिक्स काम आता है। जैसे मैंने बोला, दे एवरीबडी इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर गोल, अचीव देयर गोल। या प्रोड्यूसर इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, या हम्म। कंज्यूमर इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। तो उसमें हम्म। फिर मैथमेटिकल इक्वेशंस काम आती हैं कि एक गिवन सेट ऑफ सिनेरियो में, गिवन सेट ऑफ वैल्यूज में मैक्सिमम पॉइंट कैसे रीच करेगा कंज्यूमर, मैक्सिमम पॉइंट कैसे रीच करेगा प्रोड्यूसर। राइट। तो आप मॉडल्स बनाते हो, लेकिन वो मॉडल्स का बेस तो थ्योरी है ना। हम्म। हम्म। अल्टीमेटली लॉजिक तो वही है, उसको राइट। आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हो। राइट। या सो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए मैथमेटिक्स जरूरी नहीं है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, क्या इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है? इसका अनफॉर्चुनेट आंसर है यस, बिकॉज राइट। मोस्टली बाय इन इंडिया एंड अब्रॉड in हम्म। undergraduate and postgraduate economics carries a lot of mathematics. राइट। If you're not comfortable with mathematics, if you feel that mathematics is not for you, हम्म। then you might reconsider choosing economics as a degree. But राइट। it does not absolve, it does not exclude you from understanding economics. हम्म। वो अगर आप समझने की कोशिश करें इकोनॉमिक्स, उसमें आपको आज तक मैंने एक भी रील में अपनी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। हम्म। Yeah, and I've made some, I think more than 300, 400 reels. I don't राइट। remember the exact names, but over two राइट। years, although मैंने बहुत कम बनाई है जितना मैं बनाना चाहता था because of lack of राइट। time or whatever. राइट। Uh, but till now, I have not used any mathematics. Yeah, and people have understood. I'm happy to say people have understood a lot of what I've said in economics. सो राइट। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको फॉर्मल इकोनॉमिक्स एजुकेशन में मोस्ट ऑफ आर, आप उसको फॉर्चुनेट माने अनफॉर्चुनेट माने, लेकिन मैथमेटिक्स हमारा इकोनॉमिक्स डिग्रीज का सिलेबाई का पार्ट जरूर है। हम्म। हम्म। सर, यहाँ पे मेरे पास दो व्यू पॉइंट्स हैं। एक मेरे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये है, मैथमेटिक्स इज अ टूल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक है थ्योरी पार्ट। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वहां पे शायद हमें मैथ्स नहीं चाहिए, बट इकोनॉमिक्स में मेजरली हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन की बात करें, मिनिमाइजेशन की बात करें, भले ही वो ग्राफ्स की बात करें, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, हर जगह आई एम यूजिंग मैथ्स। सो आप इस स्टेटमेंट से कितना आपको बाइनरी नहीं बोलना, यस और नो, आप अपना से दे सकते हो, बट कैन वी से मैथ्स इज अ टूल टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स? ये स्टेटमेंट कितनी सच्ची है सर? हाँ बिल्कुल, एक टूल है। टू आई वुड फर्दर सॉर्ट ऑफ इसको मैं थोड़ा क्वालिफाई करूंगा स्टेटमेंट को, कि हम्म। मैथमेटिक्स इज अ टूल टू फर्दर अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। हम्म। ओके। बेस तो आपका थ्योरी में साउंड होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। हम्म। हम्म। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं, अब फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट कर्व्स पढ़ रहा हूँ, सो आई शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होती क्या है। राइट। या राइट। राइट। उसका शेप ऐसा है तो उसके पीछे एक लॉजिक है। हम्म। राइट। या राइट। वो मेरे को, मैं सिर्फ रट लूं उसको कि इसका शेप ना ऐसे होता है, क्यों होता है, हम्म। व्हाई डज अ वेरिएबल कॉस्ट इज लाइक दिस, एमसी इज कटिंग इट फ्रॉम बिलो, क्यों है, राइट। पीछे राइट। एक लॉजिक है। या हम्म। मैं टोटल रेवेन्यू का कर्व बना रहा हूँ, ये टोटल प्रोडक्शन का कर्व बना रहा हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बना रहा हूँ, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स में जानना चाहता हूँ। हम्म।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स में क्या दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। राइट। या तो पहले हम्म। सिर इतना फास्ट क्यों बढ़ता है, फिर वो मीडियम क्यों हो जाता है, फिर वो बिल्कुल फ्लैट क्यों हो जाता है। राइट। सबसे पहले तो मैं ये समझूंगा एज अ स्टूडेंट। या फिर मैं उसकी मैथमेटिक्स पर जाऊंगा कि अच्छा इसका कर्व ऐसा है तो इसका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ऐसे, अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे, इसका स्लोप ऐसा कैलकुलेट होगा। वो तो बात की बात है। तो फर्दर अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स। राइट। तो बट हाँ। yes sir, please continue sir. So, I mean, again, reiterating that point that you, as a student, I will always encourage people, anybody learning economics, to first have their theory sound, to have their logic sound, and then you Mm-hmm. can explore with not only mathematics, you explore with econometrics. आप Right. डिमांड कर्व पढ़िए, आप यू गो collect data on demand, you collect data on price, you test it out. Mm-hmm. Mm-hmm. And see, what is the coefficient coming out to be? वो नेगेटिव आ रहा है, क्या वैल्यू उसकी आ रही है, क्या आर स्क्वायर आ रहा है। आई एम सॉरी फॉर Right. पीपल टू डोंट अंडरस्टैंड इकोनोमेट्रिक्स, बट मैं तो इनफैक्ट इकोनॉमिक्स, साहिल, जैसे मैंने फर्दर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स की बात की ना, Mm. मैं तो इकोनॉमिक्स समझा ही जब मैंने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी Right. कि Right. होती क्या Mm-hmm. Mm-hmm. है। यू आर टेस्टिंग इट आउट इन रियल लाइफ, सो व्हाट इज द, फिर वो साइन ऑफ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, कितना एक्सप्लेन कर रहा है, वो सिर्फ प्राइस डिमांड को कितना एक्सप्लेन कर रहा है, और भी फैक्टर्स भी तो हैं। अगर मैं वो Right. लगाऊंगा तो वो कितना परसेंटेज उसको एक्सप्लेन करेगा। बेसिकली आर Right. स्क्वायर इज दैट। Right. Right. सो Right. you, in any subject, you first start with the basic. You start with Mm-hmm. a foundation. And foundation for economics always, in my view, has to be logic. Right. Then you can build it up with anything you want. Mm-hmm. फिर आप उसमें Mm-hmm. मैथमेटिक्स लाओ, फिर आप उसमें ग्राफ्स लाओ, कुछ भी लाओ। Mm-hmm. लेकिन आपके जो साउंड अंडरस्टैंडिंग, वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो तो आपकी लॉजिक ही रहेगी, हमेशा यही रहेगी। आप कितनी भी Right. मैथ्स लगा लो, Mm-hmm. लेकिन आप डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अल्टीमेटली तो फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी Right. Right. है ना। उसका Mm-hmm. इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपोर्टर इम्पोर्टर अल्टीमेटली तो वो लॉजिक ही है। Right. हाँ, अब मैं उसमें आई वॉन्ट वांट टू फर्दर एक्सप्लोर, तो मैं जो है डेटा कलेक्ट करके आई वुड ट्राई एंड मेक अ मॉडल आउट ऑफ कि हाउ Mm-hmm. हाउ फार depreciation ऑफ करेंसी affects the revenue of exporters in India, Right. and I can compare it across sectors Mm-hmm. कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में इतना फर्क पड़ता है और उसमें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में इतना फर्क पड़ता है। आई कैन फर्दर, मैं तो फर्दर तो कितना भी डेवलप कर लूँ। Mm-hmm. सो आई एम नॉट फॉर अ मोमेंट सेइंग दैट मैथ्स इज नॉन एसेंशियल। Mm-hmm. मैं ये नहीं कह रहा, but it's not essential for understanding economics. It might be a very good tool to further understand economics. Right. तो सर And जहाँ तक आपने, यहाँ सॉरी सर, आपने बात की कि one point I would like to add कि you said कि हम्म। people are not comfortable with mathematics. हम्म। Yeah. हम्म। If you remember, we had a book, एक RGD Allen करके एक बुक आती है राइट। मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की। हम्म। Let I first read mathematics with that book. मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा पहली बार उस किताब में। सो पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने उसको समझा। पहले तो मैथमेटिक्स हम उतने, यही होता था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, इसके सोल्यूशन ऐसे होता है, ये ज्योमेट्री में ऐसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये साइन होता है कॉस थीटा है। एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला जो साइन कॉस थीटा का होता है उसको रट लो। दैट वाज मैथमेटिक्स फॉर मी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई वाज राइट। नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, so I used to go by these sort of things. कि इंटीग्रेशन ऐसे होता है, उसमें ऐसा सिंबल बनता है इंटीग्रेशन में, नीचे जीरो आता है, ऊपर एक्स की वैल्यू आती है, फिर उसमें डी वाई डी एक्स आता है ना। उसमें डी वाई डी एक्स में ये वैल्यू लगा दो तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, बस आपके मार्क्स आ जाएंगे। या राइट। दैट्स हाउ आई स्टडी। राइट। आफ्टर स्टडिंग आरजीडी एलन, आई एक्चुअली गॉट टू नो यार इंटीग्रेशन होता क्यों है, इसका मतलब हम्म। क्या है, एरिया अंडर द कर्व
मेरे को निकालना है, तो आई विल sort of try and break it into equal rectangles and find the area of each rectangle and add it up. Essentially, logic is that only. Right. So anybody not comfortable with mathematics also should try and get into the roots of that subject. कि Right. मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ तो कर क्यों रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल वैल्यू का मतलब क्या है. Right. Yeah, and probably then that would become easier. Right. And even पर सर यहाँ and any subject that way, I feel that if you get into the depth of, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, you get into why am I studying that subject, what is जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे मतलब क्या है, उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, and then start, apart from just reading the subject, start appreciating the subject that way, and राइट that really. राइट तो सर यहाँ पे ना दो चीजें हैं। एक आपने बोला कि इकोनॉमिक्स समझने के लिए, एक है डिग्री लेने के लिए। बट सर एट द एंड आई नीड द डिग्री। ठीक है, समझना ठीक है। मेरे पास अगर डिग्री नहीं है तो शायद मैं ये कर सकता हूँ कि ठीक है, मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में समझने के लिए, ठीक है, बट आई नीड टू गेट सम अदर डिग्री, राइट, इफ नॉट इकोनॉमिक्स। बट अगर मेरा कीन इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, तो आई थिंक हमारे स्कूल में या फिर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बोल रहा सर, ये आई थिंक मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूँ, कि टीचर्स का मेन रोल होता है किसी भी सब्जेक्ट से प्यार करवाना या फिर हेट करवाना, राइट। बट अभी वो जो टीचर्स हैं करंटली, या तो वो अंडर पेड है, क्योंकि मैंने अभी स्कूल की हालत देखी है सर। बहुत सारे ऐसे 12th क्लास के टीचर्स हैं जिनको शायद 15 से 20 हजार रुपये सैलरी मिल रही है पर मंथ। देन द क्वेश्चन इज व्हाई दे विल पुट इतना एफर्ट कि इतना वो समझाएं। दे विल यूज टू से कि ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऐसे ही है, इसको ऐसे समझ लो, नहीं समझ आता आप कोचिंग ले लो। टीचर्स ऐसे बोल देते हैं सर। सो यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि अगर, पहली चीज मैं मानता हूँ कि टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पे दैट दे आर गेटिंग, कि आपको बच्चों को अच्छे से समझाना है। बट पे जो है, जो पे चेक उनको मिल रहे हैं, उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं सर। आजकल टीचर्स को बहुत ज्यादा बर्डन दिया जाता है। आपको पढ़ाना भी है, आपको मैनेजमेंट भी देखना है थोड़ा बहुत, आपको ऑफिशियल काम भी करने हैं, वो सारी चीजें हैं सर। देन द क्वेश्चन इज कि हम बच्चों को, एज अ टीचर आई एम आस्किंग, बच्चों को कैसे हम वो चीज दे पाए जो कि बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो देने के लिए वी नीड टाइम, एंड देर इज नो टाइम। हम अपने मैनेजमेंट को ये नहीं बता सकते हैं, और ये मैं हम इसलिए यूज करूँ क्योंकि मैंने टीचर्स के मुंह से सुना है। हम अपने मैनेजमेंट को ये नहीं बता सकते हैं कि देखो मैं तो इस बच्चे के साथ बिजी था, इसको नहीं समझ रहा था, आई नीड टू एक्सप्लेन। मैनेजमेंट हमें ये बोलती है कि आपको ही सारा कुछ संभालना है, वी डोंट हैव रिसोर्सेस। सो हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम? uh, I would say, Sahil, I've also been in teaching for a fairly long time before I joined the government, the Competition Commission of India. Uh, and my experience is this, and my advice is this for anybody get it into teaching. Anybody should teach only if he or she has a passion for teaching. I feel that if you are in teaching for any other reason, you're doing a great disservice to the job. You'll not do service to yourself or to the student. And there are, let me tell you, there are a lot of, you also must be knowing this, there are a lot of other reasons for people to be getting into teaching. राइट। Yeah. When I got into teaching, people used to, because I've first worked in the corporate and then I got into teaching, and people used to ask me, आप क्यों आए? Why you here? A lot of people ask me, why you here? राइट। You know, and I had to explain to them, this is what I love. Yeah. So, firstly, you should have the passion for teaching, only then you should get into teaching. Only people with passion, or let me reframe that, only people with passion of teaching should get into teaching, or should be allowed to get into teaching. You let me get more stricter with that.
Correct. या सेकेंडली थोड़ा कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. इफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रन एज profit enterprises, that becomes a bit of a challenge. Teachers should only be teaching, doing absolutely, or at most doing some sort of, occasional administrative work. But apart from that, absolutely nothing. Teachers should be teaching the subject, right? That should be the main goal. And of course, here in our educational regulators and all these people, they have a job to do. And I'm sure they are doing their best. And there are challenges. But commercialization of education is a bit of a challenge, no doubt about it. But anyhow, still I feel, Sahil, that anybody with a passion for teaching will still find the way to teach passionately in whatever environment. Yeah. Absolutely, sir. Do agree, sir. सो थोड़ा सा But पैशन जरूरी है टीचिंग में. Mhm. दूसरी बात है कि हम जितना रिलेट, जैसे आपने बोला कि भाई एनी टीचर कैन मेक अ स्टूडेंट फेवरेट, अ सब्जेक्ट फेवरेट फॉर अ स्टूडेंट और अदरवाइज. Absolutely true. You should again make the student appreciate the subject. You should relate it to real life as much as possible. You should simplify as much as possible. इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज है that lot of teachers, especially in higher education, they write big equations on blackboards. You know, आपने भी देखा होगा. And students just sit and admire that. कि वाओ, समझूंगा बाद में, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. right. And why? Because they want to look smart. Hmm. And that's a very human thing Right. that be respected because I know a lot more than the people I'm teaching. Right. Well, you're there because you know a lot more, firstly. Mhm. Mhm. You are there, and secondly, you are there to help them understand that. Right. So that is your primary thing. Yeah, so one primary thing for you is to make it simple. Right. And you should not feel the need to sound smart because you are smarter than them. Correct. The very True. fact that you are explaining something to them, that means that you are smarter than them. So the Sir, real इसमें smartness is in simplifying. If you are able to absolutely simplify, there's nobody smarter than you. true. True that. Using big terms, using big complicated terms, uh, may make you look smart, but ultimately not respected as a teacher. Right. That's my personal view. I mean, True, sir. Do agree. सर इसमें आपको याद होगा हम बचपन में आई थिंक मैं शायद मैं सही नाम बोल रहा हूँ प्रेमचंद्र की स्टोरीज पढ़ते थे क्योंकि वो सिंपल टर्म्स में लिखी होती थी नॉट अदरवाइज हम इसलिए पढ़ते थे Premchand. क्योंकि वो बहुत अच्छा या उसने पता नहीं क्या ही लिख दिया बट क्योंकि वो Yeah. सिंपल थी समझने में इजी थी तो शायद हमें मजा आ रहा होता था पढ़ने में सो वो सिंपल बनाना टीचर्स के लिए आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया सर और मैंने ऐसा देखा है जो भी रिसर्चर्स हैं जो भी पीएचडी कर रहे हैं जब भी वो पढ़ाने के लिए जाते हैं वो सिंपल तो छोड़ो सर वो शायद पढ़ा भी नहीं पा रहे आजकल सो व्हाट इज योर से इन दैट वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ाया है वहां पे दो चीजें हो रही हैं पहली चीज बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि सर उन लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन नहीं लिया या फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया उन लोगों ने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया है सिर्फ मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं वो लोग ऐसा बच्चों का कहना है सेकंड वहां के जो टीचर्स हैं क्योंकि उनको दिखाना है कि वी आर अ गुड रिसर्चर वो शायद इतना बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं जितना बच्चों से मुझे सुनने को मिला है व्हाट इज योर से इन दैट सर Well, if you're a good researcher, uh, where is the research in the classroom? The research in the classroom should come out of your research. Your research should be related to the subject you're teaching in. Let's say you're teaching trade, international trade आप पढ़ा रहे हो, right? Then you might research कि how does depreciation of a currency affect different sectors. राइट Yeah, and then you should share that research with your students.
that look, I collected this data, we had this result, so this supports that theory. Right. Yeah. uh, that will open up the mind of the student. फिर वो देखेगा Mm-hmm. कि यार you've done actually something good, you know. And that's how I can relate. You bring newspapers to class. Mm-hmm. You Mm-hmm. you you say that, okay, today this is the headline. This is what this is how it relates to my subject. This is how Mm-hmm. it relates to our topic. That newspaper headline may not be current. It may be 20 years back also. I may Mm-hmm. be teaching the 1970 East Asian crisis and still teaching my subject Mm-hmm. because it's Mm-hmm. yeah. Right. So I as a teacher need to uh, need to make it as much real life as possible for my students Mm-hmm. to understand. Whatever research up, Sahil, you tell me something, and I may be upsetting few people with this. Mm-hmm. इंडियन यूनिवर्सिटीज में कितनी इंडिया की थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, इंडिया से ओरिजिनेटेड थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं इकोनॉमिक्स में? नहीं पढ़ाई जाती सर, बिल्कुल भी नहीं। वेस्टर्न थ्योरीज हम लेते हैं, या बिल्कुल। हम किसी की बिल्कुल। पढ़ा रहते हैं, पॉल सैमुअल्सन ने ये बोला, इन्होंने टोबिन ने ये बोला। अरे भाई, हम्म। आपने भी कुछ किया है, राइट। यू नो, इन टर्म्स ऑफ कि आप भी रिसर्च की होगी आपने अपने सब्जेक्ट में, या तो आप राइट। उसके भी या कुछ इंसाइट्स दीजिए अपनी। सो ट्रू। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, व्हाट आई एम हम्म। ट्राइंग टू से that our approach is very very uh, very it's it is not geared towards development of a subject. हम्म। We become professors because we have certain goals in mind. We want to have certain lifestyle, uh, and in the process of doing that, we write research papers not for development of the subject, not for exploring the subject, but for gaining certain, uh, you know, job promotions or something like that. Or हम्म। to move ahead in my career, I need to write these many research papers. Yeah, attend राइट। these many con. ये एक numbers बन गए हैं कि आपने राइट। कितने रिसर्च लिखे, आपने कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की, और उनका आउटकम क्या निकला, आपने अपने सब्जेक्ट में कितना डेवलपमेंट में आपने कंट्रीब्यूट किया, दैट गोज इनटू द बैकग्राउंड। या हम्म। मुझे वही माइंडसेट है कि आपने, साहिल, एज टीचर यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड दिस क्वेश्चन कि सर इम्पोर्टेंट बताइए एग्जाम के लिए क्या है। राइट। या एंड माई आंसर यूज टू बी कि मैंने कभी आपको कुछ अनइम्पोर्टेंट पढ़ाया है, यू नो। तो अब बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि उसको ना स्कूल से ही वो आदतें डली हैं, और ये हम्म। हमने ही डाली एज टीचर्स कि राइट। बेटा आप ये पढ़ लो तो आपको इतने मार्क्स आ जाएंगे, ये पढ़ लो, इतना पढ़ लो, ये आप पास हो जाओगे, मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट राइट। है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ कैन हम्म। यू से एज अ टीचर कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है? राइट। इज इज एग्जाम द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ और ऑफ एकेडमिक्स? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो यार। राइट। सब समझोगे एग्जाम में कुछ भी लिखा होगे, किसी भी हम्म। क्वेश्चन को इनकाउंटर कर लोगे, लेकिन आप समझो कि यार ये चीज ये है, ये चीज ये है। हाउ कैन आई से कि भाई इंडिफरेंस कर्व इंपॉर्टेंट नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत आता है? नो, आई कांट से दैट, आई कांट से दैट। बट सर या आजकल जो टीचर्स हैं, स्कूल्स की टीचर्स, कॉलेज की टीचर्स, वो बता देते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट, इनडायरेक्टली इट मीन्स दैट वो एग्जाम में आ रहा है, वही बच्चों को पढ़ के जाना। सो ये सारा सो का वही सारा। माइंडसेट चेंज होने का बहुत जरूरी है, बोथ ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो देखो, रिएक्ट करेंगे एज द सिस्टम गोस, बिकॉज आपने जैसे बोला कि अल्टीमेटली दे हैव टू गेट मार्क्स, दे हैव टू गेट द डिग्रीज। राइट। So they will study the way we teach them, the way we set our examinations. अब examinations में questions आप देखो, हम्म। critical questions बनाओ आप, हम्म। you give them scenarios, yeah, you make them think. राइट। I remember I used to teach statistics in MBA to MBA students, राइट। and these were students from so when I was teaching in Greater Noida, and these were students from very humble backgrounds.
and not a lot of exposure to either mathematics, yes, but statistics, no. So things Right. like Poisson distribution or binomial distribution were very alien concepts to them. Yeah, Mm-hmm. how did Mm. I make it interesting for them? I related it with cricket. Right. Yeah, and then they got, oh, okay, so this is real life, Right. you know. So, so if you when you make a histogram of the number of hundreds Sehwag has made over the years batting at different positions, Yes. then you know, okay, well, this is what a histogram is. This is what frequency is. Right. Yeah, and then they started taking interest in that. I taught them game theory with, Right. which is supposedly a very, tough concept to understand. So, yeah, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ. What I'm saying is, and Like, I've seen a lot of good teachers also doing that. I'm not the only one who's got into anything like that. right. Been very fortunate to be taught by a lot of teachers who were making things very, very simple for us. So this is the way you have to encourage teaching. And the student will follow it that way only. Right. You have a responsibility as a teacher, I feel. Right. Do agree, sir. So, sir, there are two things. पहली चीज क्या इम्पोर्टेंट है इसमें? आई हैव वन टीचर, ही सेड, मैंने पूछा एक बार क्या इम्पोर्टेंट है, ही सेड every that thing is important which you are leaving for the exam. And he is an amazing teacher, sir. क्या उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, मुझे अकाउंट्स पढ़ाया, एंड जो जो वो पढ़ाते थे वो समझ आता था, क्योंकि शायद उनका इंटेंशन नंबर्स की तरफ नहीं था बट हमें समझाना था. एंड शायद इसीलिए वो बोलते थे कि एवरी दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट विच यू आर लिविंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम के लिए जो जो पढ़ चुके हो वो तो आप कर ही जाओगे, बट बाय चांस कुछ अगर एक्स्ट्रा आ गया यू कांट सॉल्व इट. एंड कमिंग टू योर सेकेंड थिंग, सर, कि हम मैंने सर दो पेपर सीखे. मैंने एलएसी किड्स को भी पढ़ाया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ाया, मैंने इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, और मैं खुद भी इंडिया से ही पढ़ा हूँ. हमारे जो पेपर है, मैं भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता था सर, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स. सो हमारे जो पेपर्स हैं, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, इंडियन पेपर में आता है कि व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन, एग्जांपल दे दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट एलएसी के पेपर में वो लोग ये बोलते हैं, डेटा आपको गिवन है, वेदर यू विल यूज मीन और मीडियन, गिव रीजंस. तो वहां पे चल रहा है दिमाग, वहां पे वो डेफिनेशंस नहीं पूछ रहे. अच्छा, ये आउटलायर आया, आउटलायर में हम लोग मीडियन यूज करेंगे, मीन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिजीज. तो वहां से जो क्लैरिटी आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, सर. एंड जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बच्चों को पढ़ाता था, देर इज, जब भी हमारी ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता था, पावर ऑफ वाई. हमें एज ए टीचर ये ट्रेन किया जाता था कि अगर बच्चे कुछ पूछ रहे तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और बच्चों को ये कैसे पढ़ाना है कि हर एक स्टेटमेंट के बाद वाई जुड़ना चाहिए, कि ये क्यों हुआ, उसके बाद ये क्यों हुआ, उसके बाद ये क्यों हुआ. वो जब सीरीज बनती है, तो जब एंड पॉइंट उसका आता है, दैट इज द वाव मोमेंट फॉर द किड्स. Yeah, yeah, yeah. उनको एंड पॉइंट आंसर नहीं चाहिए, उनको एंड पॉइंट अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ऐसा 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 हुआ, इसकी वजह से ये मेरे पास आंसर आया. सो देर इज वेरी डिफरेंट टेक. सो अगर मैं सिर्फ, क्योंकि मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ाया, अगर मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को देखूं और किसी भी इंडियन कंसेप्ट को देखूं, तो बहुत डिफरेंस है सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में. Difference वही है ना, approach की difference है, that and our mindset needs to. I mean, we have, let's not get it wrong. We have brilliant students in our country, brilliant Right. minds. हमारे यहाँ एक एजुकेशन का कल्चर है, शुरू से रहा है. Mm-hmm. कहीं ना कहीं हम ना एक गलत अप्रोच ले आए हैं. हम लोग वी बिकम वेरी मार्क्स ओरिएंटेड, Mm-hmm. वी बिकम वेरी स्ट्रेट जैकेटेड, आई वुड से, कि ये पढ़ लो, इतने मार्क्स ले आओ, पास हो जाओगे. Mm-hmm. या दिस शुड नॉट नेवर बी द अप्रोच. और हमारा जो ट्रेडिशनल एंशंट अप्रोच था वो कभी ऐसा नहीं था. या इन द गुरुकुल सिस्टम दे यूज्ड टू एक्चुअली teach you the logic behind things. Right. Yeah, and make you help you develop as an individual. That was the main uh, aim of education system. Right. Any education system should help you grow
इन टर्म्स ऑफ योर क्रिटिकल, जैसे आपने बोला कि पावर ऑफ वाई, क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा है क्यों? या राइट डोंट से कि पावर इज प्राइस इज नेगेटिवली रिलेटेड डिमांड, क्यों है नेगेटिवली रिलेटेड डिमांड? राइट लॉजिक क्या है इसके पीछे? राइट या इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? कोई तो हम्म एक्सेप्शन होंगे इसके। इसके राइट एक्सेप्शन क्या है? क्यों है वो एक्सेप्शंस? राइट Yeah, राइट so that is, so you develop critical thinking in students. So that is well, the responsibility of teachers, the way we should teach. Students should also encourage that in their classes when they are being taught. They should ask the question, राइट why is it so? What is the logic behind it? हम्म And आजकल तो, I mean, this is the age of technology. I would love to have this, going back in my time. I love to have YouTube and chat GPTs and when I was studying for economics or any other subject for that matter. It would have been so wonderful to, just open up YouTube and find 10 videos about what I'm trying to learn. Yeah, or ask ChatGPT to explain it to me in a language 10-year-old would understand. So go to technology if you're not able to get answers from anywhere else. If you are a seeker, yeah, you will हम्म find a way. If you want to know something, you will find a way. But you have to develop that attitude within yourself also. बट वही प्रॉब्लम है सर कि आजकल हम लोग सीख रहे हैं। और आपने भी बोला कि अगर शायद मेरे टाइम पे आया होता, चैट जीपीटी होता, आज शायद मेरे अंदर थोड़ा सा और नॉलेज होता और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती एज कम्पेयर टू पहले वाले टाइम से। बट सर आजकल मैंने ये भी ट्रेंड देखा है, बिकॉज ऑफ दिस एआई, बिकॉज ऑफ दिस चैट जीपीटी, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और कम हो रही है, क्योंकि उनको सिर्फ आंसर चाहिए अभी के लिए। दे आर नॉट सीकर्स। उनको सिर्फ लास्ट सोल्यूशन चाहिए, चैट जीपीटी में डाला, आंसर निकल गया, वही लिख दिया, समझ आ रहा है नहीं आ रहा उनको उससे मतलब नहीं है, उनके पास आंसर आ गया एंड दे आर हैप्पी। बट वर्सेस पहले वाले टाइम पे, जहाँ पे हम लोग ढंग से पढ़ते थे, हम लोग का मतलब आप लोग, हमारे सुपर सीनियर्स, बुक्स को ढंग से पढ़ते थे, समझते थे, फिर आंसर खुद से निकालने की कोशिश करते थे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन था, और कोई ऑप्शन नहीं था। वर्सेस आज वेरियस ऑप्शंस है और हमें आंसर मिल जाता है। सो वो स्टाइल इसलिए हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि टूल्स आ गए हैं लेकिन माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। करेक्ट करेक्ट Yeah. So there is a way of using that same tool in a very different way. राइट But for that, you require a change in the mindset. If the mindset continues to be getting the marks to know what is important in the exam, you will misuse that tool. And राइट the situation will become worse. But if you राइट use that to explore further, हम्म to explore, I've seen brilliant videos on YouTube on some very complicated things, right from quantum physics, to limits and functions and continuity. हम्म बहुत ही सिंपल वे में लोगों ने इतना लॉजिकल वे में चीजें समझाई हुई हैं, लेकिन हाँ, देखने वाले होने चाहिए। या राइट you should get into, you should always ask this question, why am I studying this? राइट ये लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में, इसका बेसिस क्या है, इसका जेनेसिस क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ? हम्म पैराबोलिक शेप है ग्राफ की, ये क्यों है, पैराबोलिक क्यों है? राइट राइट या व्हाई इज इट नॉट टचिंग द एक्सिस? इसके पीछे राइट लॉजिक क्या है, इसके रीजन क्या है? So get into the depth of things, then you would not find anything difficult. You would only हम्म find things difficult when you're trying to just get marks. Then things ट्रू सर become difficult. When you're trying to understand, and everything is logic, and we are all capable of logic. राइट Uh, that should be the ultimate goal. सर आपने, मुझे नहीं पता कि वो यूट्यूब पे देखा है कि नहीं देखा, अरविंद सुब्रमण्यम, जब वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे हमारे कंट्री के, उन्होंने यूट्यूब पे एक सीरीज चलाई थी इकोनॉमिक सर्विस रिलेटेड, एंड वो उस सीरीज में हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, एंड दैट इज अगेन वेरी अमेजिंग। मतलब वो जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे और जैसे ऐसे ग्राफ्स बता रहे थे, रीजंस बता रहे थे, मैंने ऑल द पूरा नहीं देखा, बट जितना भी देखा मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये तो मुझे पता था, बट इसको ऐसे भी देख सकते हैं। वो एक वाव मोमेंट था सर मेरे लिए। आई थिंक अभी भी वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, बट Okay. ही इज अगेन अमेजिंग सर। एंड एक और एनालॉजी मुझे यहाँ पे याद आई। मैं इंडियन ओशन सर, एक बैंड है, उसका एक मेंबर थे, ओशन, अभी वो नहीं है।
ही यूज टू से दैट कि अगर मैं अभी एक इंडियन किड वर्सेस एक फॉरेन किड को कंपेयर करूं, लेट्स से सेम आईक्यू लेवल, सब चीजें सेम, तो और लेट्स से एक साइकिल जोड़नी है, तो इंडियन किड ना पहले देखेगा सी फॉर साइकिल, फिर उसको देखेगा कैसे जोड़ना है, वर्सेस फॉरेन किड जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट, उनको एक्सपेरिमेंट करने की इतनी आदत है, वो एक्सपेरिमेंट करते करते खुद ही जोड़ लेगा। जो आप अभी बता रहे थे कि पहले शायद हम ऐसे ही थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, चीजों को ढंग से समझते थे, वर्सेस अब हम क्या, धीरे धीरे हमारा माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। सो सर, इसको हमें चेंज करना ही पड़ेगा आइडियली, तभी शायद हम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। बट सर, कमिंग टू योर नेक्स्ट बेस्ट और नेक्स्ट इक्वली लाइकली फेवरेट टॉपिक, दैट इज डेटा साइंस। सर, आप डेटा साइंस में कैसे घुसे हुए? क्योंकि इकोनॉमिक्स आप कर रहे हो, आपने पढ़ाया बच्चों को, आई थिंक बच्चों को आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ाया। इज इट बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या फिर आपका अंदर डेटा साइंस पहले से ही था, या डेटा एनालिटिक्स पहले से ही था, और वो सिर्फ आपको एक वर्ड मिल गया डेटा साइंस अब? ओके सो इससे पहले मैं बताऊंगा कि व्हेन आई एंटर्ड द मास्टर्स एंड आई हम्म। was introduced to the world of econometrics, राइट। I was fascinated. एंड मुझे लगा कि मैंने एक्चुअल इकोनॉमिक्स पढ़ना अभी शुरू किया है, क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स में क्या होता है कि बहुत, और ये बहुत ही एक स्केरी सब्जेक्ट है फॉर पीपल, इट कैन रियली स्केयर यू अलॉट, क्योंकि इसमें कई मैथमेटिकल नोटेशंस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। राइट। लेकिन ये फैसिनेटिंग सब्जेक्ट भी है, क्यों? क्योंकि जो आपने थ्योरी पढ़ ली कि प्राइस इज नेगेटिव रिलेटेड टू डिमांड, चलो ठीक है, थ्योरी कहती है। हम्म। अब एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है प्राइस और डिमांड का एक पर्टिकुलर सेक्टर में? तो मैं एक प्रोडक्ट हम्म। उठाता हूँ, उसके लास्ट के 10 साल के प्राइस लेता हूँ, लास्ट का 10 साल का सेल्स लेता हूँ, जो कि क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर सकता है, और मैं ये रिलेशनशिप टेस्ट करता हूँ, या एक रिलेशनशिप, ये वाली रिलेशनशिप टेस्ट करता हूँ, और मैं एग्जैक्ट कोएफिशिएंट निकालता हूँ कि कितना, अगर 1 रुपए से प्राइस बढ़ा तो कितने यूनिट्स का डिमांड घटेगा। हम्म। दैट फैसिनेटेड मी कि अरे ये रिग्रेशन, ये तो एक अमेजिंग चीज़ है। यही थ्योरी का एक एक्सटेंशन है रियल लाइफ में। राइट। How would I relate the theory to real life? So that was something that really fascinated me. And econometrics was one of my favorite subjects. But हम्म। then, you know, I came into professional life, and I went a little away from that until I joined academics again. And हम्म। then, you know, I was again, I brought myself back into statistics and econometrics, things like that. But yeah, in my work, you know, there's a lot of data involved, and that's when, at the same time, around 2016, 17, I would say, R as a tool became really popular. It was a new thing, and open source was a new thing, you know, and R became very popular. I was drawn to it, and I हम्म। did a lot of self-study. I brought some books, and I did a lot of self-study. I watched some videos on YouTube. I worked on Stata, and I was really fascinated by the way uh, they dealt with data, and how राइट। data could be analyzed using these tools. And that is, you know, because I had a background in econometrics, so I could understand, you know, what is regression and how things are done. And data science is more than regression, but yes, regression is a very important part of that. And then there is more things like multivariate analysis, principal component analysis, इस तरह की चीज़ें हैं जो और उसको एक extend करती हैं हमारे data analysis को. So I was drawn to it. I was drawn to the theoretical and the practical part of things. मज़ा आया जब डेटा विजुअलाइजेशन, जब मैंने एक्सप्लोर किया, and that was something new, because until then I was not exposed to that. I was only exposed to data analysis and the theoretical, you know, aspect of econometric statistics and data analysis. But when I could see how beautifully data can be depicted on graph, A, the beauty of it, B, the analysis part of it. How something in a pure Excel, in a simple raw Excel sheet, I cannot make out anything out of numbers राइट। because they're just numbers. But when I put it into graph, suddenly I see a pattern somewhere. राइट। Yeah, and then I can take my analysis forward. And that was like a eureka moment.
Yeah, I was Right. drawn to tools like Tableau, and even R has a lot of data visualization techniques. Right. And till date, I know I'm a fanboy of data visualization. I really feel that बहुत ही एक underrated subject है, underrated topic है. I feel it has use in any field in the world which has data, be it sports. मैंने in fact I did a back in 2018. I did a analysis of the IPL जब IPL auctions हुए थे. Then Right. I did an analysis of the IPL in terms of the balance of teams, in terms of batters, bowlers, and all-rounders. And Right. I had predicted the team which is the most balanced, most likely to win the IPL. Or Right. by coincidence, team won the IPL. But I take no credit for that. It's just an experimental exercise. मेरे Yeah. ख्याल से सर आपको अब लोग बाबा बन के फॉलो करेंगे सर कि हाँ बताओ कब कौन सी टीम जीतेगी बट दैट इज बिकॉज ऑफ लॉजिक दैट यू हैव Yeah, yeah, अप्लाइड of course. Yeah. I mean, obviously, ऐसा नहीं है कि भाई most balanced team ही IPL जीतेगी. T20 is a game of chances. राइट वो मैंने जैसे बोला एक coincidence है कि भाई हाँ वो टीम जीती. Lot of things have to go into place apart from just being a balanced team. But yeah, a balanced team has a more probability of winning. Yeah. राइट So again, coming back to the topic, data visualization is something that I was drawn to because I felt that it's a very, very powerful technique to firstly understand your data, what your data is about. So it has exploratory and explanatory uses. What do I mean by that? To explore your data. जैसे मैंने बोला एक सिंपल एक्सेल शीट है उसको आप एक स्कैटर डायग्राम में डाल लो उसका एक बार डायग्राम बना लो या अगर जोग्राफिकल है तो उसको आप मैप पे लगा लो सो यू कैन डिटेक्ट पैटर्न यू कैन एक्सप्लोर योर डेटा यू कैन सी हु आर द आउटलायर्स क्लस्टर के पॉइंट्स कुछ जो डेटा पॉइंट्स हैं जो अलग ही हैं दूसरे पॉइंट से तो आप क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आप एक एक्सेल शीट में कभी नहीं कर पाओगे आप उसको राइट ग्राफ में डाल के ही कर पाओगे सेकेंड इज एक्सप्लेनेटरी this is especially for professionals who have a job where they have to explain some phenomena to a non-economist or a non-statistician. Yeah, or have to explain their data to somebody who's not familiar or who's not comfortable with data. So राइट graphs, humans perceive graph better than numbers. Visual राइट perception is always better than numerical perception of data. So that explanatory power also with data visualization has. So that's how I was drawn to it. Uh, and still, I am a very keen learner of how colors work in data, how राइट scales work in data visualization. It's a beautiful field to explore. राइट नहीं सर मैंने देखा अभी आज के पॉडकास्ट में भी उससे पहले भी आपने जस्ट अभी एक ग्राफिकल जियोग्राफिकल मैप वाला कुछ शेयर किया है ऑल्दो मैं इसको पूरा पढ़ नहीं पाया मैंने ऊपर ऊपर से देखा बट आई लाइक योर वर्क और उससे पहले भी मैंने देखा था जहाँ पे आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक ग्राफिकल वे से समझाया था कि एप्पल टॉप कर रहा है फिर सैमसंग है सो ऑन एंड सो फोर्थ जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है आई डू एग्री सर बट सर क्योंकि हम यहाँ पे स्टैट्स की बात कर रहे हैं एक और स्टेटमेंट है स्टैट्स को लेके स्टैट्स इज अ लाई व्हाट इज योर Uh, से damn lies and statistics, right? Uh, See, anything you can use to your advantage, and also to not your advantage, or in a fair way, I would say. So it also once you know a tool, अगर आपके पास एक फास्ट ड्राइविंग कार है तो आप उसको दोनों तरीके से चला सकते हो आप उसको एंजॉय करके चला सकते हो या आप उसको रैशली चला सकते हो या इन विच अदर पीपल So good statisticians can use statistics in whatever way they like. Yeah, and statistics can lie also. So इसलिए statistics की knowledge होना भी important है. If somebody is lying with you, to you, in terms of statistics, you should have the knowledge of statistics to know the truth behind what he's राइट saying. राइट सो सर यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है
जो कि जब मैं बच्चों को स्टार्ट पढ़ाता था तब वो एग्जाम्पल मैं मीन मीडियन मोड ही पढ़ा रहा था। एंड आई यूज टू गिव वन एग्जाम्पल कि जब कॉलेज वाले आपको प्लेसमेंट के लिए बोलते हैं और वहां पे वो मीन बता दे कि एवरेज पैकेज ये है, हो सकता है कि 5 स्टूडेंट्स ही है वहां पे। फर्स्ट स्टूडेंट का पैकेज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और फोर्थ का लेट्स से 96 लैक्स। अगर आप पांचों को कंबाइन कर देते हो, या फिर टोटल इज वट एवर 100 लैक्स, बट लास्ट वाले का सबसे ज्यादा है। सो वहां पे आपको एवरेज पैकेज 20 लाख मिलता है। बट जब आप आउटलायर को हटा देते हो तो एवरेज पैकेज इज अराउंड 2 to 3 lakhs, बिटवीन दैट। सो स्टैट्स इज अ लाई। कॉलेज वाले आपको वो समझा रहे हैं कि आप, दे आर टेलिंग यू द एवरेज, बट एज अ स्टैटिस्टिशियन, एज अ स्टैटिस्टिक स्टूडेंट, यू शुड आस्क कि व्हाट इज द मीडियन सैलरी, व्हाट इज द मीडियन प्लेसमेंट थिंग दैट यू ऑफर। सो डेफिनेटली सर, बट one more thing, stats is a lie, but do graphs also lie? Yes, graphs lie very much. People can make graphs lie. I saw I saw a bar graph with respect to some, I think, US election Hmm. somewhere, and it was showing the difference between the popularity of two candidates. Yeah, Hmm. and the difference was huge. The difference between bars was huge. Hmm. But if you look closely, the axis does not start from zero. हाँ. तो उससे क्या होता है, अगर जीरो से वो स्टार्ट नहीं हो रहा ना आपका बेस, एक बार ग्राफ में, Hmm. तो आपका जो डिफरेंस बिटवीन टू बार ग्राफ्स है वो जितना एक्चुअल में है उससे बहुत ज्यादा दिखेगा। Right. तो Right. बात अब वो चेक करने नहीं जाएगा कि बेस जीरो है कि नहीं है, हाँ, हाँ, वो हाँ. 40 से शुरू हो रहा है। हम्म. तो अगर 40 से शुरू होगा आपका बेस, तो इवन बिटवीन 60 एंड 65 आपको इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा। Right. Right. So graphs can definitely lie. That is why you should know uh, the basics of graphs so that you're not fooled by any statistician. Right. So I mean, yeah, that's what I'm saying. If you have a tool, you can use it both ways. Right. But as a consumer of that information, you should have the knowledge कि भाई what is being told to me is actually truth or not. Right. सर, आजकल मैं काफी रील्स में देख रहा हूँ, और मैंने आपकी एक रील भी देखी थी जिसके अंदर, अब मुझे वो रील तो याद नहीं है, बट वो ये बंदा ये बोल रहा था कि अगर आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतने का आपको प्रॉफिट मिलेगा, इतने टाइम के बाद इतना पैसा हो जाएगा। देन यू मेक अ रील ऑन दैट पर्टिकुलर रील, जिसमें आपने समझाया कि देखो वो बंदा कैसे गलत बोल रहा है, हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर, क्या, व्हाट इज योर से इन दैट सर? See again, the mindset, which I was talking about, कि मार्क्स लाने हैं मेरे को इसलिए मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, वही माइंडसेट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। या सो 10 साल में 200 करोड़ कमाने की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? ये एक 3 सेकंड का हुक है। राइट. या इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस आपको एजुकेट करना नहीं है। इसका पर्पस है व्यूज लाना या कमेंट्स लाना, और जो भी उसका आगे का पर्पस हो। या दैट इज द पर्पस। एनीबडी हु इज टेलिंग यू, लाइक माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से, एक बहुत अच्छी लाइन मेरे नाना जी कहते थे अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स, कि अगर एस्ट्रोलॉजर्स इतना जानते हैं तो बेटा ये खुद राजा होते अगर इन्हें पता होता कि इनकी लाइफ में क्या होने वाला है। ट्रू. नो ऑफेंस टू एस्ट्रोलॉजी, आई रियली लाइक एस्ट्रोलॉजी, आई रियली बिलीव इन इट, लेकिन आई रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजर्स हु नो देयर स्टफ, और वो बहुत कम लोग हैं आज की दुनिया में। पॉइंट मेरा ये है कि whenever somebody says कि अगर आप ना मेरा, आप कई ऐसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको एड्स मिलेंगे कि भाई आप मेरा एक कोर्स करो, आप ये 200 रुपये का वेबिनार अटेंड करो और मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 दिन में 2 करोड़ कैसे बनाते हैं। I mean, doesn't make sense. Yeah. If somebody हाँ. really knows how to make that amount of money, would you be spending, Instagram money on Instagram or Facebook and asking you some 200, 500, 1000, 2000, whatever fees that he's asking you? Yeah, it's logic. Yeah, but they are exploiting a mindset. The mindset is Hmm. quick money. Yeah, and in all Ponzi schemes, this mindset
इज ऑलवेज बीन एक्सप्लॉइटेड राइट फ्रॉम, मतलब ये एंशंट टाइम से चला आ रहा है। सारी पॉन्जी स्कीम्स आप उठा के दे, दीज आर नॉट नथिंग बट जस्ट मॉडर्न ग्लोरिफाइड पॉन्जी स्कीम्स। या Right. सो the the idea is that you make people believe that they can, drive a Formula One car and win the race. Yeah, I get a lot of uh, DMs messages कि सर मेरे को ट्रेडर बनना है। क्यों बनना है जी आपको ट्रेडर? दे हैव नो आइडिया, दे हैव नो आइडिया। जैसे कि नहीं, वो ट्रेडर बनना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है मार्केट में, शेयर मार्केट में। मैंने बहुत रील्स देखी हैं, मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। स्कैल्पिंग करनी है मेरे को, एल्गो ट्रेडिंग करनी है मेरे को। दे नो नथिंग Right. अबाउट शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, नथिंग। आई आस्क देम, भाई यू आर 20 ईयर ओल्ड, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ट्रेडिंग? हाउ मच मनी डू यू हैव टू लूज? कितना पैसा है आपके पास जो आप लूज करें आपको फर्क नहीं पड़ता? अगर है आपके पास तो करो ट्रेडिंग, मैं सिखाता हूँ आपको ट्रेडिंग। Right. बट व्हाई शुड यू गेट इनटू ट्रेडिंग? यू आर नॉट फिट फॉर ट्रेडिंग। अगर मैं आपको बोलूं कि आप लीजिए, आप फॉर्मूला वन की रेस में आप चलिए, और ये लीजिए हेलमेट, ये रही गाड़ी, आप चलाना शुरू करिए, तो आप कितनी देर जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे? आप कहीं ना कहीं क्रैश करेंगे, बिकॉज यू कांट compete with those professionals. There are traders Right. who earn a lot of money, but they are professionals. They have the depth of knowledge, they have the experience in the market, and they have the capital to lose. Yeah, and they get into trading and they are successful at it. Are you among them? No. If you are a if you are a middle class young professional जिसकी अभी जॉब लगी है मार्केटिंग में, आप 20 साल के हैं, 23 साल के, 25 साल के हैं, आपकी 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, सो आप हर महीने कुछ ना कुछ आप मार्केट में इन्वेस्ट करिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदना चाहें आप उसमें करिए। आप स्टॉक्स खरीदते हैं, अब लोग कहते हैं कि मैं स्टॉक्स कौन से, मुझे नहीं समझ में आता है ये स्टॉक्स क्या होता है, क्या होते हैं स्टॉक्स, कौन सी कंपनी का खरीदूं? मेरे पास जो मेरे फ्रेंड के मैसेजेस आते हैं, मेरा फ्रेंड बहुत डील करता है स्टॉक मार्केट में, जो मैसेज आते हैं मैं ले लेता हूँ। सो वाइल बाइंग अ फोन, यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, राइट, कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं, या इसके कितना एमपी कैमरा है, इसका कितना जो है मेमोरी कार्ड है, वट एवर इट इज। बट वाइल बाइंग अ स्टॉक यू डोंट, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसमें तो आपको पढ़ना चाहिए उसकी एनुअल रिपोर्ट क्या है, उसका कितना रेवेन्यू ग्रोथ है, किस चीज़ में वो बिजनेस कर रहा है, या वो जो मार्केट है उसमें कितने उसके कंपेटिटर हैं। तो बेसिक चीज़ें आप पढ़ लीजिए, तब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए। डजंट टेक, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। या आप कुछ नहीं करना चाहते आप, तो आप यू गो एंड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स विच हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, या which are not into very high risk sectors, which are not into very high risk companies, you invest into them. So I mean you should, and that's where financial literacy comes in. Yeah. तो कई जगह लोग बोलते हैं कि भाई ये चीज़ हमें क्यों पढ़ाई जाती है, इसका हमें यूज़ क्या है। इनफैक्ट कई चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ानी चाहिए। या Right. एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज वन ऑफ देम। पीपल शुड नो कि व्हाट इज द यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। Yeah, and today youth requires a lot. This is required by youth a lot because especially post COVID, yeah, where a lot of interest has come into markets, especially among the young people. Yeah, they've not seen a market crash. Yeah, so they might have seen a bearish market, but not a market crash. So they should know that market does not go one way in the short term, but in the long run it goes one way. Usually it does. So if you stick with good stocks, you will, over time, you will compound your money. So this sort of, so my endeavor through these deals, जैसा आपने बोला, तो मेरा मकसद किसी को डिमीन करना नहीं है। My only thing is that people don't get fooled. People should know कि भाई if he is saying something, अब जैसे for example, I've seen a lot of things जहाँ पे people say कि वॉरेन बफे तो कहते थे कि वॉरेन बफे ने 30% जो है ग्रोथ ओवर टाइम, ओवर अपने लाइफ टाइम जो है 30% ग्रोथ लिया है। वॉरेन बफे सेज इफ आई गेट
15% in my lifetime, right? I'm a king. 15% CAGR. I'm a king. या और ये लोग जो कह रहे हैं कि साल में आप 30% ग्रोथ करोगे, कैसे होगा 30% ग्रोथ? जो वॉरेन बफे नहीं ले पा रहा तो आप कैसे ले लोगे? तो ट्रू। अजम्पशन बना लेते हैं कि भाई आप जो है 10 साल में जो है 200 करोड़ कैसे कमाना है, मैं आपको बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? पता चलता है वो 40% का ग्रोथ दिखा रहे हैं। कैसे हो सकता है 40% का ग्रोथ? राइट। If Warren राइट। Buffett is getting 15%, if mutual funds are saying 12 to 15% growth, then how can you get it 40% growth? राइट। People don't get into these nitty-gritties and they keep sharing these reels with each other. राइट। Yeah, तो सर they show a mutual fund which is started 1 year back and they say कि इसकी हिस्ट्री रही है कि ये 50% रिटर्न देता है साल के। हाँ, ये देखा, ये भी देखा मैंने सर। हिस्ट्री कितनी है? 1 साल की हिस्ट्री नहीं है। ये देखा था मैंने, ये देखा था। सो आपको ऐसे लगता है सर, बिकॉज ऑफ कोविड सोशल मीडिया में जो रील्स हैं वो और ज्यादा आ गई हैं, एंड जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेक रील्स बन गई हैं, क्योंकि कोविड में शायद लोगों ने बहुत ज्यादा रील्स बनाने शुरू कर दिए जस्ट बिकॉज उनके व्यूज बढ़े, या फिर उनको प्रॉफिट हो किसी भी तरीके से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। बट उसकी वजह से जो जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। राइट। कहीं ना कहीं दिस माइट बी अ रियलिटी साहिल। लेकिन इसकी मैं एक पॉजिटिव साइड भी देख देख रहा हूँ कई जगह। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नेवर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल मार्केट्स, they have at least developed an interest. They have started investing. They have starting to explore. And of course, markets may, when you come, you make mistakes. And Mr. Market teaches you. So I have a positive view of this. मुझे लगता है कि they they might uh, they might face some sort of troubles and losses in the beginning, but if they stay the course, they will learn. Yeah. So हम्म। today I think people might be not educating properly or misleading people, but ultimately people will get to know. That is what I feel. That is, I'm very positive about it, because as more knowledge spreads, as more people get into the depth of things, the more they the better they are insulated against these things. तो हो सकता है कि इनिशियल फेज हो वेयर पीपल आर गेटिंग अवे विद सेइंग एनीथिंग, बट आई डोंट थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट आई होप so. And for that it's important that people get into depth of things. People get into whys, as जैसे एजुकेशन में वाई इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग में भी वाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मैं अगर राइट। मैंने कोई रील देखी है तो मैं उसको शेयर करने से पहले एक बार सोचूं, यार 10 साल में 200 करोड़ कैसे बन सकता है? 40% की रिटर्न अगर आ रही है तो एक्चुअली कितनी आती है? या राइट। तो मैं देखूं कि सेंसेक्स की रिटर्न पिछले 20 साल की कितनी रही है, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स कितने रहे हैं जिनका कम से कम 5 साल का रिकॉर्ड हो। तो मैं बेसिक्स अपने चेक करूं, अपने ठीक करूं, ताकि मुझे कोई बेवकूफ ना बना सके। सो दिस मच, दैट्स व्हाई से इन्वेस्टर एजुकेशन इज वेरी, फाइनेंशियल लिटरेसी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस शुड बी टॉट इन आवर स्कूल्स डेफिनेटली। राइट। राइट सर। वन लास्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे हमें ये बोलते हैं कि सर मुझे इंडियन इकोनॉमी करंट में क्या हो रहा है ये पढ़ना है, तो व्हाट इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर दैट? इज इट इकोनॉमिक सर्वे, इज इट आरबीआई रिपोर्ट्स, इज इट न्यूज़पेपर? क्योंकि मैं सारी चीजें नहीं पढ़ सकता, आई नीड ओनली वन थिंग। आई वुड से दैट फर्स्टली रीड योर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स। हम्म। या बिकॉज दैट इज द बेसिक। वो कहीं भी अगर छप रहा है, आरबीआई में अगर वो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, या आपका इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है, जेनेसिस हम्म। उसका न्यूज़पेपर में होगा। और सारी रिपोर्ट्स में, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट्स हैपनिंग इज दैट ऑल द रिपोर्ट्स आर पीरियोडिक एनालिसिस ऑफ न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, या और डेवलपमेंट्स इन राइट। द इकोनॉमी। सो ऑन अ हम्म। डेली हम्म। basis, firstly you to read the financial newspaper, and you राइट। should know
कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू द इकोनॉमी, वट एवर इज इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी, you have to Mm-hmm. rate that. Yeah, you have to see where is the exchange rate going. You're not Mm-hmm. concerned with individual stocks because that Mm-hmm. will never come in your purse. But yes, you should know, what is the what is volatility, what is stock volatility. You should know the concepts. Yeah. Mm-hmm. So basically, the way to approach reading financial newspapers is that firstly you master. आप पहले इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप मास्टर करिए. उनका Mm-hmm. मीनिंग आपको पता होना चाहिए. आपको पता होना Mm-hmm. चाहिए कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है तो क्या है, अप्रिसिएशन है तो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई क्यों यूज करता है जब डिप्रिशिएट होती है करेंसी, राइट. कैसे यूज Mm-hmm. करता है, सेल करेगा डॉलर, बाय करेगा डॉलर, उसके पीछे लॉजिक क्या है. सबसे पहले तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करिए. Right. इन द न्यूज़पेपर यू सर्च फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ. Right. क्या Right. कि वो कैसे यूज हो रहा है. And then the third part comes the figures. So you should have a place where you note down the developments and figures. And there are some Right. things which change with time. Every few days foreign exchange level change होता है, Mm-hmm. या फॉरेन रिजर्व सॉरी लेवल चेंज होता रहता है हमारा, बढ़ता करता रहता है. सो यू शुड बी नोटिंग दैट डाउन. जीडीपी फोरकास्ट यू शुड बी नोटिंग दैट डाउन. या यू शुड Mm-hmm. हैव यू हैव ब्रॉड आइडिया. करंट अकाउंट डेफिसिट, you should have an idea. 1% ऑफ जीडीपी है, 2% ऑफ जीडीपी है, क्या है. शेयर एंड Mm-hmm. एक्सपोर्ट्स हमारा कितना, एक फेयर आइडिया आपको होना चाहिए. Right. एटलीस्ट आपको एक रेंज पता होनी चाहिए. आपको Right. अगर रेंज का आइडिया हो एक इकोनॉमिक वेरिएबल का, तो आपको उसका एग्जैक्ट फिगर तभी याद रह सकता है. या Correct. सो यू शुड हैव एन आइडिया कि भाई फिजिकल डेफिसिट हमारा अराउंड इतने परसेंट चल रहा है, इतने का टारगेट है. Mm-hmm. या शेयर एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमारा इतना है, सर्विसेज में हमारा एक्सपोर्ट इतना का शेयर इतना है वर्ल्ड में. So Mm-hmm. then you relate first. So basically, again, summing that up, you master your concept. You relate when you read the newspaper. You relate that concept with the real life, Mm-hmm. and then you get to the figures. Yeah. Right. In this three-dimensional approach, if you do this regularly, then फिर क्या है कि फिर आप आगे कुछ भी पढ़ेंगे, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो फिर आप उसको रिलेट करेंगे उससे. Right. या Right. कि yes, after certain event happened in the US, the dollar started हाँ डॉलर ना बढ़ने लगा था जब जब डेप्रिशिएट होने लगी थी करेंसी. तो Right. इससे Mm-hmm. टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं, हो सकता है टैरिफ्स बढ़ जाएं वर्ल्ड में. तो टैरिफ्स बढ़ेंगे तो फिर क्या इम्प्लीकेशन होगा इंडियन इकोनॉमी पे, वो इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस हो जाएगा. लेकिन आप उसको Right. रिलेट तभी कर पाओगे जब आपने फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पढ़ा होगा. Right. सो Right. बेसिक है. आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स, आप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पे सीधा चले आओगे, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी. तो पहले आप अपने Right. कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर पे जाइए, फिर एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए. और किसी भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने का इंडियन इकोनॉमी में मैं एक फ्रेमवर्क हमेशा डिस्कस करता हूँ. वो है एफएफए फ्रेमवर्क, फैक्ट्स, Mm-hmm. फिगर्स एंड एनालिसिस. Right. किसी भी चीज के फैक्ट्स क्या हैं. अब फॉर एग्जांपल हम टैरिफ वॉर की बात कर रहे हैं, तो Mm-hmm. फैक्ट क्या है. फैक्ट ये है कि दो नेशंस के बीच में ट्रेड हो रहा है. ये नेशन Right. इसमें स्पेशलाइज कर रहा है, ये नेशन इसमें स्पेशलाइज कर रहा है, राइट. Mm-hmm. और सेकंड फैक्ट ये है कि अगर नेशन ए इज एक्सपोर्टिंग इनटू नेशन बी, राइट, तो उसके जो नेशन बी के प्रोड्यूसर्स हैं वो नाराज हो रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है, या हम compete नहीं कर पा रहे हैं इनके प्राइसेस से, तो Right. टैरिफ्स बढ़ाए जाएं, हमें प्रोटेक्शन दी जाए. दीज आर द फैक्ट्स. अब आइए फिगर्स पे. अभी टैरिफ Mm. कितना चल रहा था, अभी टैरिफ कितना हो जाएगा, या कितना एक्सपोर्ट हुआ है उस कंट्री से उस कंट्री में पिछले लास्ट साल Right. में, का शेयर कितना है उस कंट्री की इंपोर्ट्स में, उस कंट्री का शेयर कितना है उस कंट्री के एक्सपोर्ट में, उस कंट्री का शेयर कितना. ये फिगर्स हो गए. अब आप Right. एनालिसिस करिए कि भाई ये जो टैरिफ है ये लगता क्यों है, इसका Mm-hmm. क्या असर पड़ेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं. So if you Right. work within this framework, understand. So when you read a financial news, आप इन तीन चीज में आप डिवाइड कर लो उसको.
Mm-hmm. कि इसमें मेरे फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3। इसके Right. फिगर्स क्या है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। और इसकी एनालिसिस क्या है, वो आपको या तो एडिटोरियल में मिल जाएगी, या कई बार वो न्यूज़ आर्टिकल में ही मिल जाती है। वो न्यूज़ आर्टिकल ही बता देता है कि दिस इज लाइकली टू डू दिस, Right. 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 depreciate Right. Oriental currency. So this might deplete our foreign exchange reserves because RBI is likely to use this foreign exchange reserves to stabilize the currency in the foreign market. Right. Right. Yeah. So you work within this framework, you will do very well in understanding Indian economy. Right. Amazing, sir. And one last thing that you want to say to students. Uh, I would say that, firstly, Sahil, we discussed a lot of things today, Yeah. but ultimately, I feel that this is a very different world. जैसे हमने अभी डिस्कस किया AI, चैट जीपीटी, Mhm. इसमें सोशल मीडिया भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। या एंड इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इट। This world today is a very different world from where we grew up in. Uh, it has a lot of distractions. It has a lot of pressures. You know, a lot of things are there. You just need to pick up your phones to just move further away from your goal. Yeah. So my message to everybody is, know what you want in life. Firstly, you should know कि आप क्या चाहते हो. Then you should know how much you want it, how badly you want it. Yeah. Thirdly, what's your plan? Firstly, you answer these three questions. What do you want? How much do you want? And what's your plan? Right? Uh, and then you should focus. Yeah, you should balance things in life, and you should know that, okay, if I want something, this is how much I should give of myself to my goal. Because this part of life will never come back. Everything else will come back, but this part of life will never come back. Because as life progresses, different things keep taking shape in your life. Your priorities change, everything changes. Yeah. And sometimes you don't have the time to, get into things which you love. So enjoy. If you're into studying, you enjoy studying. If you're into sports, you enjoy the sports. If you're into arts, you enjoy the arts, but become the best at it. आप जो भी करें उसमें बेस्ट बनिए, और किसी और से बेस्ट कंपैरिजन में बेस्ट नहीं। आप खुद से अपने आप को हर दिन कंपेयर करिए, कल मैं क्या था और आज मैं क्या। एंड कैन आई बिकम द बेस्ट version of myself? How much can I explore myself? Yeah, and youth has an energy. Youth के साथ एक वर्ड हमेशा कनेक्ट होता है, वो होता है एनर्जी। द एनर्जी दैट यू हैव, यू विल नेवर हैव इन योर लाइफ। या एंड एनर्जी किस चीज के साथ कनेक्ट होता है? एनर्जी कनेक्ट होता है चेंज के साथ। यू गिव एनर्जी टू समथिंग, यू चेंज इट। या सो यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, यू गिव एनर्जी टू इट। Right. हाँ, कहीं मैंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वांटम फिजिक्स का, कि जितनी एक चीज की वाइब्रेशन होगी ना, उसका उतना ज्यादा अफेक्ट होगा। True, sir. या True, sir. Right. सो इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ योर एफर्ट, Right. यू द इंटेंसिटी ऑफ योर एफर्ट। इंटेंसिटी आपका जो एफर्ट है, आप किसी भी चीज में, आप सिंगिंग में, डांसिंग में, एथलेटिक्स में, मैं नहीं होएगा आज की मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई की बात करूँ। you should pick up some one thing in your life and become the best at it. That is the idea uh, that should be in your head at any point of time. Excellence should be the goal. Focus should be the way. Yeah. And you should believe in yourself. If you don't Right. believe in yourself, nobody else can believe in you as much as you can believe in yourself. True, sir. So no matter what anyone says about you, nobody knows about you as much as you do. Right. So keep believing in yourself, keep working hard, be focused, be happy, be healthy. Yeah. Uh,
have every sort of balance in life. Life is an experience. You should experience things in life, but you should have a focus about what do you want from life and how do you want to go about it. So that is my message to the students. Amazing, sir. Beautiful. थैंक यू सो मच सर, आपने बात करी, टाइम निकाला, एंड आई होप स्टूडेंट्स को इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी एंड दे विल मूव अहेड विद अ ग्रेट गोल इन इकोनॉमिक्स डेटा साइंस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Thank you, Sahil.